السلام علیکم۔ اولیاء اللہ کی سرزمین ملتان، آج کے پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ سے، بابرکت جگہ سے، جہاں ہمارے بالکل پیچھے جو آپ کو مزار نظر آ رہا ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بالکل قریب میں ہی ان کے پوتے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار ہے۔ تو یہاں ہم نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ ملتان کی ایک تو پہچان ہے یہ مزارات، یہ اولیاء اللہ ملتان شہر کی پہچان ہے، اور دوسرا عقیدت مندوں کا یہاں اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ پروگرام آغاز کرتے ہوئے شہر کا وہ حصہ جو سارے لوگوں کے لیے دلوں کے بہت قریب ہو، ہم عام طور پر اسی کا چناؤ کرتے ہیں۔ آئے تو ہم پولیٹیکل پروگرام کی غرض سے ہیں، لیکن ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور موجود ہے جو اس شہر کی پہچان بن کر پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ تو ملتان شہر کی پہچان یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی خدمات کے صلے میں یہاں اسلام پھیلا ہے، ان کی کوششوں سے یہاں اسلام پھیلا ہے۔ الیکشن کا ماحول ہے، تو الیکشن کے ماحول میں ہم جائیں گے شہر کے اندر اور شہر کے مختلف حصوں میں وہ انٹرویوز سنوائیں گے آپ کو جو لوگوں کے مسائل کا حل کی طرف ہمیں لے جا سکیں۔ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب کے بچے ہوں جو ان کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ شاہ صاحب تو خود پابند سلاسل ہیں، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس شہر کے اندر کوشش کریں گے کہ ان سے رد عمل لیں، لوگوں کے مسائل کا حل، لوگوں کی تکلیفوں اور دکھوں کا مداوع یہ منتخب نمائندے کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا ہماری پارلیمان میں منتخب ہو کر جب یہ لوگ جائیں گے تو سالہ سال سے 70-75 سالوں سے لوگوں کی جو تکلیف ہے، مشکل ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کے حل کی طرف بھی جائیں گے یا نہیں جا پائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ان منتخب رہنماؤں کو وہ ہمت، وہ حوصلہ دے اور وہ حکمت اور دانائی بھی عطا کرے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کچھ کوششیں کر سکیں۔ چلتے ہیں مختلف حصوں کی طرف، اور آج کے پروگرام کا اختتام ہم اینڈ پہ جائیں گے، آپ کو شاہ رکن عالم پہ لے کر جائیں گے اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر ہی آج کے پروگرام کا اختتام بھی کریں گے۔ آئیے شہر کے اندر چلتے ہیں۔ او بھول بھلے رے عشق جو آیا، بھول بھلے رے عشق جو آیا، محبت ڈاڈھا شور مچایا، محبت ڈاڈھا شور مچایا، تھا تھا ناچ نچائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش سے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی، اس وقت ہم ان کے مزار کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ دائیں طرف والی قبر مبارک حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت عارف باللہ، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ انہی کے صاحبزادے شاہ رکن عالم، ان کا مزار بالکل قریب میں ہے۔ یہاں سے ہم باہر نکلیں گے تو دوسری طرف بھی جائیں گے۔ ان بزرگان دین کی تبلیغ اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس پورے علاقے کے اندر جو اسلام پھیلا اس کے اندر ان لوگوں کا بنیادی رول ہے۔ تو ان بزرگان کی قبروں پر حاضری دے کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن ایک ہر مزار کے اوپر جا کر میں سبق ضرور دہراتا ہوں کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، مانگنا اللہ سے ہے، صرف ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں ان کے سبب اس علاقے کے اندر اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس دفعہ نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے، جتنی پارٹیاں بیکار ہیں باقی عمران خان کو دیں گے ہم۔ ووٹ یہ تو ابھی سوچا ہی نہیں ہے، یعنی وقت آنے پہ فیصلہ کریں گے۔ ابھی میں اپنا ووٹ قیمتی جو ہے نا شیر کو دوں گا۔ ووٹ تو عمران خان کا ہے۔ ووٹ ہم مسلم لیگ کو دیں گے۔ کوئی خیال ہی نہیں ہے ووٹ کا، ووٹ کیا دیں؟ اپنی پڑی ہوئی ہے، روٹی کی پڑی ہوئی ہے، ووٹ کیا دیں؟ کسی کو نہیں دیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے۔ ووٹ جی عمران خان کو۔ میں اپنا ووٹ نون لیگ کو دوں گا۔ میں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا۔ ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کو دیں۔ فی الحال دل تے نہیں کرتا کسی نے دین نو۔ نواز شریف کو۔ عمران خان کو۔ سر میں نے اپنا ووٹ جنرل پارٹی میاں محمد نواز شریف کو دینا۔ میں جماعت اسلامی کو ووٹ دوں گا۔ عمران خان کو بھائی۔ مسلم لیگ کو۔ ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا۔ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو دیں گے اور امید کریں گے کہ انتخابات شفاف ہوں۔ میں طریق انصاف نوں داں گا۔ شیر کو۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نواز شریف۔ نواز شریف کو۔ ووٹ بھائی جان شیر کو دے رہے ہیں۔ بلہ زندہ باد۔ ووٹ تو جو نا ہم نواز شریف کو دیں گے۔ عوام نے
عمران خان کو موقع دیا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا, تباہی کری ہے. جی ووٹ انشاءاللہ نواز شریف, میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ ہم اس سال نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ. ووٹ ہم میاں نواز شریف صاحب کو دیں گے. صرف شیر کو, نواز شریف صاحب کو. ووٹ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے محمد میاں نواز شریف صاحب کو دیں گے. پی ٹی آئی. بھائی جان ہم مزدور آدمی ہیں, ریڈی دار آدمی, ہم نواز شریف کو ہی ووٹ دیں گے. بلاول کو دیں گے, تیر کو دیں گے ووٹ انشاءاللہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت مصروف قسم کی, اگریسو قسم کی کیمپین ان کی جاری ہے, اور رات کے اس وقت بھی ابھی یہ مختلف حلقوں میں, یہ دیہی علاقہ ہے ارد گرد, اور کیمپین کرتے ہوئے ایک جگہ پہ رکے ہیں, اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں بھی تھوڑا وقت دے دیں. گیلانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. مہربانی. آپ کی کیمپین بہت اچھے سے چل رہی ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ماشاءاللہ بہت کمفرٹیبل ہے. بہت. پاکستان پیپلز پارٹی عام طور پر ملتان والے حلقوں میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے, باقی پنجاب کی نسبت آپ نے ایک تگڑا سٹرانگ ہولڈ رکھا ہوا ہے. کیا اس میں راز کیا ہے؟ نہیں, اس میں ہمارا ساؤتھ میں اور رحیم یار خان از ویری اسٹرانگ, مظفر گڑھ از ویری اسٹرانگ, اور باقی ملتان از اسٹرانگ, باقی لیا از ویری اسٹرانگ. ہمارا اوور آل بہت ساری جگہوں پہ بہت اسٹرانگ ہیں ہم. جب ملتان کے اندر جو میری اسیسمنٹ ہے کہ ایز پرائم منسٹر آپ نے کافی ترقیاتی کام کروائے ہیں, یہ جو پلوں کا جال ہے یہ سارا یوسف رضا گیلانی کا کمال نظر آتا ہے اس شہر کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ اس کا بینیفٹ لوگوں نے آپ کو دیا ہوا ہے. جب بھی آپ انتخابی میدان میں اترتے ہیں وہ آپ کو ووٹ ابھی بھی دیتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی بات کلیریفیکیشن میں یہ کروں کہ پہلے یہ بات نہیں تھی. پہلے جو پروجیکٹس میں نے دیے تھے ویزیبل نہیں تھے, لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ بن جائیں گے, تو اب بن گئے. تو اب دوسری جو وجہ ہے وہ 3 پارٹیز ہیں. پہلے 2 پارٹیز کو لوگ دیکھتے تھے کہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے. اب the third force is a PTI. اب لوگوں نے کمپیریزن تینوں کا کر لیا ہے, who contributed in ملتان اور in سرائکی خطہ when they were in power. اور اس میں اب پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے اس خطے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ساؤتھ پنجاب کے اندر کتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی لے جا سکتی ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں ٹھیک پرفارم کرے گی, مگر موسٹلی انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. زیادہ تر انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. الیکٹیبلز جو ہیں وہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ ہیں. اور کیا وہ جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے؟ نیچرلی جس کا مینیفیسٹو بہتر ہوگا, جس کی شخصیت بہتر ہوگی, جس کا پروگرام بہتر ہوگا, جو اس خطے کی محرومیوں کو اور محکومیوں کو, اور اس کی ایک جو ہم نے پہلے سلوگن دیا تھا, سلوگن نہیں دیا تھا, پریکٹیکلی 2/3 میجورٹی سے سینٹ میں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہم نے پاس کرا لیا فار جنوبی پنجاب پروونس. گیلانی صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے بلے کے نشان سے محروم ہو چکی ہے. ان کے بھی سارے جتنے کھلاڑی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہیں, تو وہ انڈیپینڈنٹ کسی ایک پارٹی کو تو جوائن کریں گے, لازمی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی جائے. لگتا یہ ہے کہ بڑی جماعتوں کی طرف ان کا رجحان ہوگا. They will cross the bridge when it will arrive. رابطے ہیں ان سے؟ رابطے تو ہمارے سب سے ہیں. رابطے ہیں سب سے رہتے ہیں, اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی بحثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو توقع کیا ہے؟ بلاول بھی لاہور میں کیمپین کر رہے ہیں, 127 میں اس دفعہ لاہور میں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو بھٹو کے دور میں ایک طاقت تھی, یا ایون بی بی کے دور میں بھی پیپلز پارٹی ڈیڈ ویری ویل ان پنجاب, کیا وہ والا دور لوٹ سکتا ہے؟ دیکھیں, بہت ساری جو پی ٹی آئی تھی وہ پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کر بنی تھی, تو اب نیچرلی اگر اب جو ایرو اور شیر کے درمیان جو فیصلہ ہوگا تو پی ٹی آئی کا جو ایک ڈائی ہارٹ ورکر ہے, تو اف دے ہیو اے چوائس دے وڈ ناٹ ووٹ فار نون لیگ. آپ کیا سوچتے ہیں اگلا وزیر اعظم کس جماعت سے آ سکتا ہے؟ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا. بلاول بھٹو ہوگا, بالکل. کولیشن گورنمنٹ بنے گی؟ کولیشن گورنمنٹ تو نہیں بنے گی, کوئی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بنے گی.
पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकेगी, लेकिन आपको ये यकीन है कि बिलावल ही वज़ीर आज़म बने? जी। बेस्ट ऑफ लक गिलानी साहब, थैंक यू। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ हैं 150, ये हल्का यहाँ से जैन उम्मीदवार हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब इसी हल्के से लड़ते थे और मेहरबानो खुद NA 151 से उम्मीदवार हैं। मोहल्ला करीराबाद है मुल्तान का। मेहरबानो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। कुरैशी फैमिली बड़े अरसे से मुल्तान की सियासत में छाई हुई है। इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, शाह साहब जो हैं वो जेल में है और जिम्मेदारी आपके कांधों के ऊपर है। भाई की कैंपेन भी चलानी है और PTI को भी रिप्रेजेंट करना है, क्या करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त है हमारे लिए, सिर्फ हमारी जमात के लिए नहीं, हमारे वर्कर्स के लिए, मेरे ख़ुद के लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं जब इलेक्शंस का अमल शुरू हुआ तो जहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स, फाइलिंग, उसकी स्क्रूटनी, वो सारा शुरू हुआ, सबके सामने है कैसे हमारे लोगों का पीछा किया गया, कैसे उन्हें अरेस्ट किया गया, कैसे कागजात छीने गए, कैसे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स जो तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा थे उनको किस तरह उठाया गया। मगर आप देख सकते हैं कि इस सब के बावजूद हम सबके हौसले बुलंद हैं। हम आज भी उधर ही खड़े हैं जहां हम पहले खड़े थे। हम डट के सामना करेंगे और हम मुकाबला भी भरपूर करेंगे। शाह साहब, क्या जेल में होने से कोई नुकसान होगा आपके वर्कर्स को मोबिलाइज करने में? पार्टी के अंदर जो जज्बा होता है कि वर्कर पीछे लीडर के घूमता है, वो तो मुतासर होने का अंदेशा नहीं है? जी देखिए, सबकी शायद ख्वाहिश यही थी, इसीलिए उनके जो कागजात नामजदगी हैं उन्हें मुस्तरद किया गया। हालांकि जो उनकी वजूहात हैं वो बिल्कुल फ्रिवलस ग्राउंड्स हैं। स्टैम्प पेपर का था, जब वो सब एतराज़ात दूर हुए तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो FIRs में उनका नामजद हैं तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मगर उसके बावजूद भी हम यहाँ पर हैं। मेरा भाई, ये मेरे वालिद का हल्का है, जैन कुरैशी यहाँ से लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे कागजात यहाँ से मुस्तरद हुए थे। मेरे कागजात NA 151 में कबूल हुए तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। वहाँ से मैंने बाई इलेक्शन भी लड़ा था और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन दोनों हल्कों के मुख्तलिफ यूसीज को टच करती हुई जाऊँ और यहाँ पे कैंपेन कर सकूँ अपने वालिद के लिए, अपने भाई के लिए, अपने लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उसके हर वर्कर के लिए जिसने कुर्बानी दी है, जिसने पिछले 18 महीनों में बहुत मुश्किलात का सामना किया है। और उस सब के बावजूद हम सब आपके सामने खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं, एक विजन के साथ खड़े हैं। हमसे बेशक हमारा निशान छीना गया है मगर हमारी पहचान नहीं छीनी गई। हमारी पहचान खान है और हम उसके साथ खड़े हैं। आप जो भी हमें निशान दे दें। यहाँ पे जैन का इंतखाबी निशान? जैन का इंतखाबी निशान जूते हैं। और आपका? मेरा इंतखाबी निशान चिमटा है। बहुत सोच के उन्होंने हमें ये निशान दिए हैं। मगर आपके ख्याल में ये क्यों चुना है उन्होंने, जूता जैन के लिए और चिमटा? आप देने वाले से पूछे उन्होंने क्यों दिए हैं, मगर जूता तो पड़ेगा मुखालफों को। और जैन कुरैशी जिंदाबाद, जैन कुरैशी जिंदाबाद। और चिमटे से शेर की खाल भी उतरेगी इंशाल्लाह। आपके इरादे अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तीर को हमने पहले ही तोड़ दिया था, अब शेर की खाल नोचनी है वो भी कर देंगे। अच्छा, मुल्तान की पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। मुल्तान की सियासत में शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी आपस में कांटे का मुकाबला होता था। हम पिछले कई इलेक्शन में इन्हीं का ही देखते आते थे। इस दफ़ा शाह साहब पिक्चर में नहीं होंगे, मेहरबानो होंगी, हर जगह पे हमें नजर आएंगी। मेहरबानो बहुत बड़े बिग शूज, आप क्या उसमें अपने आप को संभाल पाएंगे? जी देखिए, मुझे मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि मुझ में तुम्हारी कि तुम में मुझे अपनी झलक दिखाई देती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी हल्के की आवाम भी मेरे चेहरे में मेरे वालिद की झलक देख सकेगी। और एक पुराना हमारा नारा हुआ करता था जब मेरे वालिद ने सियासत शुरू की थी, तेरा वजूद मेरा वजूद, शाह महमूद शाह महमूद। तो यही नारा लेकर मैं आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी मुझ में शाह महमूद ही दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ आज इस हल्के में शाह महमूद की बेटी नहीं आई मगर बेटी के रूप में शाह महमूद खुद आया है। और मुझे उम्मीद है कि इस हल्के की आवाम मेरा भरपूर साथ देंगे। वो NA 150 के लोग जूते पे मोहर लगाएंगे और NA 151 के लोग चिमटे पर मोहर लगाएंगे। और शाह महमूद की उस कुर्बानी को और इमरान खान साहब की उस कुर्बानी को जो वो अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसके वक़ार के लिए दे रहे हैं, उसे सराहेंगे और उसका मुआवजा करेंगे, उसका अजाला देंगे अपना वोट देकर।
आपको कैंपेन करते हुए हाथ में एक चिमटा भी रखना चाहिए। पंजाब में वो चिमटा बजाया जाता है मौसीकी के तौर पर। वो खाने वाला चिमटा है। वैसे ये चिमटा ना हो ना तो घर में रोटी बंद हो जाती है, तो चिमटे का साथ दे, रोटियां पकती रहेंगी। 8 फरवरी को बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि उनके तंजीम इस वक्त इतर बितर है, लीडरशिप जेलों में है या भागी हुई है या छुपी हुई है, तो वोटर्स को मोबिलाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल होगा, मगर देखिए वोटर डटा हुआ है, वोटर नहीं हिला। जितनी कोशिश कर ली पूरे जोर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अपनी जगह से नहीं हिला। कुछ लोग हैं जो बड़े लोग थे या इन्फ्लुएंशियल समझे जाते थे, जिन पे दबाव आया और वो पहले ही दबाव के जोर में बह गए, मगर जो वोटर है ना वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, और वोटर ही हमेशा से हमारी जो स्ट्रेंथ रही है, हमारी जो मजबूती है, वो हमारा वोटर है। और वो वोटर हमारा निकलेगा इंशाल्लाह, ज़ोरों शोर से निकलेगा और डट के निकलेगा। आप देखिएगा 8 फरवरी को। तो पीटीआई के जो लीडरशिप थी उसमें 2-3 कैटेगरीज हम कर सकते हैं। कुछ तो जेन्युइनली जिन लोगों के नाराज़गियाँ इमरान खान से 9 मई से पहले ही शुरू हो गई थी, वो लैदा हो गए थे, उनका तो जस्टिफिकेशन बनती है कि नाराज़ हो गए, पार्टी से दूर हो गए। लेकिन तो पहले छोड़ देना चाहिए। कुछ तो छोड़ गए ना, लेकिन कुछ वो लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो सेकंड कैटेगरी है, जो 9 मई के बाद उन्होंने कोई ना कोई बहाना तराशा। तीसरी कैटेगरी वो है जो पकड़े गए थे, अंडर प्रेशर थे और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। लास्ट सेगमेंट वो है जो लॉयलिस्ट है। परहैप्स आपके वालिद उसमें प्राउडली बता सकते हैं कि मैं उनमें शामिल रहा हूँ। आपके ख्याल में ये चंद एक लोग बचे रहेंगे आखिर तक, या एक स्टेज आएगी कि टूट जाएंगे, शाह साहब भी कहेंगे कि नहीं बस बहुत हो गया? देखिए अब टूटने का वक्त ख़त्म हो गया, अब जो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा रहेगा। हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत मुश्किलों का सामना किया है। आपके सामने है कि मैं पिछले कितने महीनों से अडियाला के बाहर 6-6 घंटे खड़ी हूँ सिर्फ मुलाकात के लिए। हमने बहुत जद्दोजहद की है कि हमें जेल में एक्सेस मिले, आवाम को एक्सेस मिले, मीडिया को एक्सेस मिले, वो ट्रायल्स देखें कि इन ट्रायल्स खुद देख सकें कि इन ट्रायल्स में कोई दम ही नहीं है, इनमें कोई ज़ोर ही नहीं है। तो इस सब के बावजूद हम तो नहीं हिले, तो अब क्यों हिलेंगे? हम खड़े हैं, हम एक नज़रिए के साथ खड़े हैं और हम एक असूल पे खड़े हैं। या तो अगर आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए खड़े हों तो फिर आप हिल जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो किसी से तो फिर आप हिल जाते हैं अपनी जगह से। मगर जब आप एक असूल पे खड़े हों, और जैसे कि हम कहते हैं जब आप कलमे में यकीन रखते हो ना, आपको अल्लाह का डर हो, आपके दिल में तकवा हो, तो फिर बंदा अपने असूल से नहीं हट सकता। एक लास्ट क्वेश्चन, नॉट डायरेक्टली रिलेटिंग टू द इलेक्शंस, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में बाज़ वक्त ऐसे आते हैं कि हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं पे भी चले जाते हैं। अभी भी हो रहा है, लेकिन एक स्टेज पे कुलसूम नवाज हॉस्पिटलाइज थी, मरियम और उनके वालिद नवाज शरीफ दोनों जेल में थे। क्या आपको लगा कि उस वक्त एक सियासी गलती थी जो रवश पीटीआई ने उस वक्त अपनाई थी, ढोल पीटे जाते थे, उसको गुरेज करना चाहिए था? इंतकामी सियासत जो है कभी मुस्बत समत में हमें लेके गई नहीं है। देखिए मैं अपने वालिद की बात करूँगी क्योंकि मैं उनकी नुमाइंदा हूँ इस वक्त। मेरे वालिद ने कभी इस तरह की बात नहीं की, हमेशा शाइस्ता गुफ्तगू रखी है। डू यू फील इट वाज रॉन्ग कि मेरी वालिद की गुफ्तगू तो नहीं, मैं तो पूछता हूँ कि कुलसूम अगर हॉस्पिटल में हो और मजाक उड़ाया जाए, या मरियम जेल में हो और उसको सेलिब्रेट किया जाए। अगर लीडरशिप की तरफ से मजाक उड़ाया जाए वो फर्क बात है। आप सपोर्टर्स वर्कर्स की जिम्मेदारी लीडरशिप ज्यादा आसान कर लेते हैं। जिन्होंने मजाक उड़ाया, डू यू थिंक इट वाज रॉन्ग एट दैट टाइम? नहीं बिल्कुल जी, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी सियासत में हमेशा हम सराइकी वसेब में, हमारे वसेब में खलूस रहा है सियासत में। शाइस्तगी भी रहनी चाहिए और खलूस भी रहना चाहिए, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए उसको। उसी से देखिए, आप अगर इस वसेब में देखें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आपने खुद कहा हमेशा से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक दूसरे की शादियों पे, एक दूसरे की गमी में हमेशा जाते हैं, हमेशा एक तमीज़ से, एक तरीके से मिलते हैं। मुझे काश के उनमें ये बहुत खलूस पाया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि जो नौजवान नस्ल है आगे जो सिलसिले को लेके जाने वाली, उनमें भी वो ही खलूस हो, क्योंकि सियासत में देखिए ये खलूस रहना चाहिए। आप तब भी जो कुलसूम नवाज साहिबा की बात करें, हम सब उनके लिए दुआ गो थे, हम सब ने दुआ की। लीडरशिप में किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, वर्कर्स में एक जज्बा था, एक जैसे मरियम साहिबा जिसने भी किया तो गलत किया, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस 8 फरवरी के लिए आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैदान में उतरिए और हमारी दुआएं हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 8 के बाद फिर राब्ता करेंगे आपसे इंशाल्लाह। जीती हुई तो फिर तो बार बार करेंगे इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिए। थैंक यू।
नून लीग को देंगे। हम अपना वोट देंगे क्रेन को। वोट भाई हमने किसी को नहीं देना। इमरान भाई को, शेर को, किसी को भी नहीं। पीटीआई को। मैं अपना वोट शेर को दूंगा। हम पीपल्स पार्टी को अपना वोट दें, क्योंकि मुल्तान के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं। नवाज शरीफ। वोट दूंगा मैं पीटीआई को। तरीके लब्बैक पाकिस्तान को। पीटीआई को दूँ। मियां नवाज शरीफ को वोट देना चाहिए, वो सही वोट का हकदार है। वोट देंगे पीटीआई को। किसी को भी नहीं देना भाई। नून लीग को। पीटीआई को देंगे वोट भाई। वोट हम इस दफ़ा नून लीग को देंगे। किसी को भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह पीटीआई को। भजन वोट देने की बाद में है, पहले हमने ये देखना है मुल्क के लिए कौन सा बंदा अच्छा है। मौलाना फजल रहमान साहब को देंगे। नून लीग को। पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई। वोट भाई दिल नहीं कर रहा किसी को देने को, क्योंकि इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। बेड़ा घर कर दिया मुल्क का, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल पार्टी है, इन्होंने बेड़ा घर कर दिया। अब दिल कर रहा है किसी को वोट ना दे बंदा। सर वोट इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे और आगे भी हम इसी पार्टी के साथ चलेंगे। मलिक अहमद हुसैन डेढ़ उनके हलके के अंदर मौजूद हैं और इलाके के लोगों ने काफ़ी तादाद में इनको बड़ा गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल करने के लिए यहाँ ढोल भी है, ये नाचने वाले भी मौजूद हैं और इलाके के अवाम भी मौजूद हैं। डेढ़ साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसा मुकाबला चल रहा है आपका गिलानी साहब के साथ? अल्लाह की मेहरबानी से मैं समझता हूँ ये तारीखी मुकाबला है और उतना ही तारीखी रिजल्ट होगा। और इंशाअल्लाह ताला लास्ट टाइम मैंने इनके बेटे को हराया था इसी हलके से, अब्दुल कादिर गिलानी को, और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को हराऊंगा और बहुत बड़े मार्जिन से हराऊंगा इंशाअल्लाह। द टाइम विल टेल यू। ये जिस इलाके में अभी हम मौजूद हैं इसका क्या नाम है और थोड़ा सा इसकी तफसील बता दें। मतीतल इस इलाके का नाम है। इस इलाके में DHA बना है और इस वक्त इस इलाके में सिचुएशन ये है कि DHA में अब्दुल कादिर गिलानी ने 5 अरब इन्वेस्ट किया है। जो पटवारी यहाँ का है उसके ऊपर 12 पर्चे हो चुके हैं, ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं और रात को गरीब सोते हैं, सुबह ज़मीन उतर जाती है। वो 12 पर्चों वाला पटवारी गिलानी साहबान ने छुपाया हुआ है। इस वक्त इंतज़ामिया भी उसे नहीं पकड़ पा रही या शायद पकड़ना नहीं चाह रही। आपके नीचे MPA कौन कौन है? मेरे नीचे MPA हैं जी, एक मलिक शौकत हयात बोसन साहब और दूसरे हैं भुट्टा साहब, मियाँ शहजाद मकबूल भुट्टा। तो आप कॉन्फिडेंट अपनी पोजीशन से? सिकंदर इनका ये जो बोसन साहब है सरदार सिकंदर हयात बोसन के ये भाई हैं, छोटे भाई हैं उनके, तो फिर तो आपकी पोजीशन तगड़ी लगती है। मैं कॉन्फिडेंट, ये भी एक वजह है, लेकिन बेसिक वजह ये है कि लास्ट टाइम ये दोनों मेरे साथ नहीं थे एंड आई बिकेम द MNA। लेकिन उसकी वजह यह है कि मेरी मोहब्बत इन गरीबों से है। आप देखें ना, ये वो गरीब हैं जिनका असल वोट होता है। मेरा डायरेक्ट इनसे ताल्लुक है। मैंने यहाँ की सियासत चेंज की है, वडेरों की सियासत चेंज की है। मैं यहाँ झूठा पर्चे की नहीं होने देता, चोर डकैत की सपोर्ट नहीं करता, कब्जा ग्रुप की सपोर्ट नहीं करता। मैं पॉलिटिक्स में इनकलाब लेके आया हूँ और मैं इनकी करप्शन की सारी स्टोरियाँ जो है वो लोगों के आगे बयान करता हूँ। ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, दे लव मी बाय हार्ट। और ये जिस तरह ये घोड़े और ये इस्तकबाल कर रहे हैं ना, मैं इन्हें गले मिलता हूँ, मैं इनके पास थड़े पे बैठ जाता हूँ। तो ये मोहब्बत नसीबों वालों को मिलता है। पिछली दफा आप कितने वोटों से जीते थे? मैं तकरीबन 12,000 वोट से जीता था उस वक्त। आपके मध्य मुकाबिल कौन कौन थे? मेरे मध्य मुकाबिल उस वक्त थे अपना अब्दुल कादिर गिलानी पीपल्स पार्टी और नून लीग और मलिक सिकंदर हयात बोसन साहब दोनों। हाँ जी। तो इस दफा आपकी पार्टी और है, तो आपको लगता नहीं है कि इससे वोटों की परसेंटेज जो है या तो आपकी फेवर में भी जा सकती है, नहीं तो चैलेंज भी हो सकता है? सर मैंने चूंकि असूलों पे छोड़ी थी, 70 बच्चे जल गए और उनके ऊपर इंसाफ ना मिला, उसकी वजह थी। दूसरा, मेरा जो असल लड़ाई थी वो इमरान खान से नहीं थी, इमरान खान के साथ बैठने वालों से थी, जैसे शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर, फवाद चौधरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया है। खुद इमरान खान मासूम आदमी है, मैं आज भी नून लीग में खड़े होकर कहता हूँ, लेकिन उसकी ना वो क्या कहते हैं ना, मतलब इंसान की शनास नहीं है, उसे बंदे को पहचान नहीं सकता। जो उन्होंने अपने साथ लोग खड़े किए, उन्होंने एफिड्रिन में फंसा दिया, फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया,
उन्होंने इनको ऐसे प्लान करके ना साइड लाइन किया है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है ना सर, उसमें पॉलिटिकल माइंड नहीं हो सकता। खिलाड़ी होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी मार खा गया है। इन लोगों ने जो, ये वो लोग हैं जो 9 मई ने काफी नुकसान पहुंचाया। सर देखें, ये गिलानी और कुरैशी वो लोग हैं जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनसे जागीरें ली। हम अहमद हुसैन डेहड़ खरल, हम खरल हैं। उस वक्त अहमद खान खरल थे जो मुजाहिदीन के सरदार थे, इन्होंने उनको शहीद करवाया। तब से ये अंग्रेज़ों के साथ रहे। आज भी इनकी सियासत अंग्रेज़ों वाली है, हमें गुलाम समझते हैं, यहाँ पे लोगों पे जुल्म करते हैं, कब्जे करते हैं, पर्चे करवाते हैं। मैंने इनके खिलाफ जिहाद, अल्लाह में जिहाद बुलंद किया है। पिछली दफ़ा मेरे साथ नाजिम भी नहीं थे, मेरे साथ काउंसलर थे और मैंने इनसे इलेक्शन जीता। इस दफ़ा तो अल्लाह की मेहरबानी से सारी बड़े अच्छे मतलब बड़े नाम भी मेरे साथ हैं और मैं अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उम्मीद है कि अब गिलानी साहब आजकल क्या कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे के मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं कि ये करप्ट है। अब मैंने जब करप्शन ही नहीं की, मैंने कोई कब्जा ही नहीं किया, अब पैसे दे के लोगों को कह रहे हैं इसके खिलाफ बयान दे। अब मैंने ये सोचा है कि जो मेरे खिलाफ बयान देगा मैं उसके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा करूंगा, फिर मुझे जवाब दे मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने इनकी करप्शन बेनकाब की है। आजकल ये कब्जे कर रहे हैं। DHA में जो लोग यहाँ पे जिनकी ज़मीनें हैं उनको, उनके ऊपर इन्होंने जुल्म किए हुए हैं। रात को लोग सोते हैं, सुबह ज़मीन उतर जाती है। ये मती दल के लोग खड़े हैं, इनसे आप पूछ लें। अच्छा, एक बात है, इस दफ़ा मुल्तान शहर की पॉलिटिक्स में जहांगीर तरीन IPP से वो एंटर हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी उनको यहाँ से वो उन्होंने नाहल किया हुआ है, इसलिए उनके टिकट नहीं हुई। उनके दोनों बच्चे मेहरबानो और जैन वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो थोड़े से डायनामिक्स फ़र्क है इस दफ़ा शहर के। आपको क्या लगता है कि नून लीग इससे बेनिफिट करती है? क्योंकि IPP से तो इत्तेहाद है आप लोगों का, जहांगीर तरीन से तो इत्तेहाद है आपका। जी मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब ये सीट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे खकवानी ख़ानदान भी बहुत सारा है उनके हलके में, और वो एक मतलब उनकी शख्सियत भी इतनी एक वो अच्छी शख्सियत है, यानी कि एक जैसे लविंग, ही इज़ अ लविंग पर्सनैलिटी और लोगों के साथ बहुत। कितनी सीटें देते हैं मुल्तान से आप नून लीग को? मेरे तो ख्याल में क्लीन स्वीप है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई सीट भी, क्योंकि गिलानियों ने करप्शन से अपने आप को ख़त्म कर दिया है। फिर लोगों में ये ट्रेंड है कि गिलानी 5 सीटों से लड़ रहे हैं, बेटा, दूसरा, तीसरा बेटा, चौथा, पांचवा, अब तो सुना है उसका भाई भी आ रहा है, अगली दफ़ा पोते को भी लड़ा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सुना है कि जी शाह मूसा साहब के दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। अगर 30 बच्चे होते तो 30 लड़ते, जनूबी पंजाब में यही लोग ही लड़ते। ओवरऑल अगर देखें तो PMLN के हवाले से बात करते हैं, आपको 8 फरवरी को कौन लगता है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा? सर मेरे ख्याल में मैं ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो हालात हैं वो नून लीग के नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि मेरा ताल्लुक इनसे है, इसलिए नहीं, इसलिए कि अब इस वक्त नून लीग के अलावा या नवाज शरीफ के अलावा कोई इस मुल्क को शायद संभाल नहीं सकता, फाइनेंस को नहीं संभाल सकता, इन हालात को नहीं संभाल सकता। क्योंकि पूरे पाकिस्तान की तारीख देख लें, आप न्यूट्रली सोचें, किसी को भी वो ना करें। तो अगर किसी ने लोड शेडिंग ख़त्म की है, किसी ने CPAC बनाए हैं, अभी देख लें जो जहाज़ तेल का आया है रशिया से, तो अनहोनी जो या कुछ स्टेबलाइज हुआ है हमारा मुल्क, तो इनके दौर में हुआ है, क्योंकि ये पुराने आ रहे हैं और ये फाइनेंस को समझते हैं। तो बज़ाहिर कोई कोलिशन बनता नजर आता है, तो कोलिशन में आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो अक्सरीती हिस्सा उसका नून लीग के पास होगा? अगर नून लीग के पास अक्सरीती हिस्सा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को आगे मुश्किलात ज़्यादा दरपेश हों। नून लीग से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ, उसके अलावा कोई और का सोचा भी नहीं जा सकता। बेस्ट ऑफ लक जनाब डेढ़ साहब, बहुत शुक्रिया। जैन कुरैशी मुल्तान में कुरैशी फैमिली से ताकतवर उम्मीदवार मैदान में 150 से, और इनके मद्दे मुकाबिल क्या इनको उस दिन अच्छा टफ टाइम दे पाएंगे? शाह महमूद कुरैशी मुल्तान की सियासत में एक तवील अरसे से उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है और उनको आसानी से सियासत से दूर करना
کسی کے لیے شاید ممکن نہ ہو. جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکل میں، بلے کا نشان بھی نہیں ہے، اور ان کے جتنے کینڈیڈیٹس میدان میں اترے ہیں مختلف الیکشن سمبلز کے ساتھ اترے ہیں. زین قریشی کے پاس اس وقت جو نشان ہے، میں انہی سے پوچھوں گا کہ نشان ان کے پاس کیا ہے اور اس نشان کا استعمال ان کے حق میں جائے گا یا ان کی مخالفت میں جائے گا. زین قریشی بہت شکریہ، ایک تو آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ بڑی مشکل میں، پہلے تو یہ بتا دیں بڑی مشکل میں تھے، بڑی محنت تلاش کر کے آپ کو ڈھونڈا، آپ تھے کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ ملتان آئے ہیں اور آپ گراؤنڈ پہ یہاں پہ کوریج کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ملتان 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ تھا. یہاں پہ 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، 6 کی 6 پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی تحریک انصاف کا قلعہ ہے، اور یہ ہم ثابت کریں گے 8 فروری کو. بلے کا نشان جانے کا نقصان ہوگا؟ بلے کا نشان انہوں نے لیا ہے، لیکن یہ ہمارے سے ہماری پہچان نہیں لے سکتے. ہماری پہچان آج بھی عمران خان ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ الیکشن جو ہے عمران خان کے نظریے کے تحت اور حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمیں نشان کا نقصان شاید ان کی نظر میں ہوا ہوگا، بٹ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو اوٹ پٹانگ قسم کے نشان ملے. آپ کا سمبل کیا؟ مجھے جوتے کا نشان دیا گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ وہ سمپتھی فیکٹر ہمارا بڑھ گیا ہے، اور آج جوتے کا نشان جو ہے وہ نہایت مقبول ہے حلقے میں، اور حلقے کی آواز یہ ہے کہ اس جوتے سے جو ہے ہم شیر کا شکار کریں گے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑی انڈیپینڈنٹ اوپینین میں، پاکستان میں یہ کوئی مجھے پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر انہوں نے گھمایا ہے، الیکشن کے بعد مجھے لگتا ہے علاج کروانا پڑے گا. اس وقت آپ کا گراؤنڈ پہ سپورٹ موجود ہے، پنجاب سارے میں بھی ہے، ملتان میں بھی موجود ہے، لیکن میری ایک ریڈنگ ہے ایز اے جرنلسٹ، آپ کی تنظیم ٹوٹ گئی ہے، بندے غائب ہیں، لیڈرشپ غائب ہے. الیکشن ڈے آدھا الیکشن ہوتا ہے، اس دن ووٹر کو موبلائز کرنا، isn't it going to hurt you؟ دیکھیں سر، دیٹ واز انٹینشن. نیت تو اسی سے کیا گیا تھا. ایک خوف و ہراس کی فضا بنائی گئی ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ان کی چار دیواری پامال ہوئی ہے، گھروں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، جھوٹے پرچے کیے گئے ہیں، وہ سارا اپنی جگہ پہ ہے، اور ایک فیئر کا سینٹیمنٹ کریٹ کیا گیا ہے. لیکن آپ یقین جانیں قیدی نمبر 804 کا ایک ایسا کرزمہ ہے کہ جہاں اس کا نام لگتا ہے تو عوام میں جوش بھی آ جاتا ہے، جذبہ بھی آ جاتا ہے. اور جیسے خان صاحب نے کہا خوف کے بت توڑ دو، لوگوں نے خوف کے بت توڑے ہیں. اس سب کے ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے بے گھر ہیں لوگ، اپنے گھروں میں رات کو سو نہیں رہے ہیں، لیکن خان کے بلے کے لیے، خان کے نشان کے لیے اور خان کے امیدوار کے لیے کیمپین بھی کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ باہر بھی نکلیں گے. رہی بات پولنگ ڈے کی، اوبویسلی آپ اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں، الیکشن لڑنے والے لوگ آپ کو بتاتے ہیں آدھا الیکشن پولنگ ڈے پہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی موجود ہوں گے، ہمارے پولنگ ایجنٹس بھی موجود ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنے امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کرائیں گے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو یہ جیت عمران خان کے نام کریں گے. میری آپ سے کئی ہفتوں کے بعد آج ملاقات بھی اور بات بھی دونوں اکٹھی ہو رہی ہے. آپ تھے کہاں پر؟ کیا بیتی؟ کچھ اپنی آپ بیتی بھی تو سنائیں. آپ بھی تو یہ ہے سر کہ پرچوں لاتعداد قسم کے پرچے ہیں، 23 سے زائد پرچے ہیں میرے اوپر، اور 12 سے زیادہ کیسوں میں نے بیل کرائی ہوئی ہے. باقیوں میں جو ہے اب بیل بھی نہیں کرا سکتے. اگر بیلیں کراتا پھروں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، الیکشن لڑوں تو بیلیں نہیں کرا سکتا. تو مفرور ہو کے پھر رہے ہیں. لیکن موسٹ وانٹڈ اینڈ ایبسکونڈر، ابھی اللہ کا شکر ایکسپونڈر نہیں ہوں، بیلیں میری انٹیکٹ ہیں ساری. لیکن ہم نے فیصلہ، یہ الیکشن ہے ہی نہیں ملک صاحب. یقین جانیں ہمارے سمجھنے میں یہ ایک ریفرینڈم ہے، اور ہمارے سمجھنے میں ایک جہاد ہے. ہم ایک جہاد لڑ رہے ہیں. یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں مشکلات ہمیشہ آتی ہیں، لیکن فیصلہ کیا، جو قربانی عمران خان صاحب نے دی ہے، جو قربانی میرے والد نے دی ہے. آج 160 دن سے زائد ہو گیا وہ پابند سلاسل ہیں. آج 160 دن سے زائد ہو گیا ہے. آپ نے خود دیکھا سائفر کیس جو ہے 3 دفعہ ریسٹارٹ ہو چکا ہے، اور بنیادی طور پہ تو اس میں کچھ نکل نہیں رہا، بٹ اوبویسلی ان کو پابند سلاسل رکھنا ہے. آپ کو پتہ میرے والد کی سائفر کیس میں بیل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو MPO کے تحت جو ہے جیل میں رکھا ہوا ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ انسان جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کو بیل ملنی چاہیے تھی، اس کو اپنی کیمپین خود کرنی چاہیے تھی، اس کو آ کے اپنے الیکشن لڑنے کی اجازت. خیال میں شاہ صاحب کو الیکشن پروسیس سے دور کیوں کیا گیا اور ان کو بیل کیوں نہیں ملی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مقبول ترین لیڈر ہے، وائس چیئرمین ہے، اور اوبویسلی اگر وہ آتے تو ان کے آنے سے نہ صرف ملتان میں بلکہ پاکستان میں ٹیمپو ہوتا. جہاں شیر افضل مروت صاحب جا رہے ہیں اور ان کو اس قسم کا رسپانس مل رہا ہے، جہاں پارٹی کا وائس چیئرمین جاتا، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا. بدقسمتی ہے 214 میں NA 214 تھر پارکر میں شاہ صاحب کے کاغذات جو ہے منظور ہو گئے. وہی کاغذ جن کو انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر سائن کیا تھا، جن کو انہوں نے اکٹھے ہی پروسیس کیا
गया था 214 में मंजूर हो जाते हैं, लेकिन NA 150 में, NA 151 में जो है उनके सिग्नेचर्स को चैलेंज कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली एक मनसूबाबंदी के तहत ये किया गया है, पर इंशाल्लाह ये ना हमें रोक पाएंगे ना इमरान खान को रोक पाएंगे, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत हक की होगी और सच की होगी। एक और जो बड़ा खर्चा है, PTI के कैंडिडेट्स अगर जीत भी गए तो ज़्यादातर लोग अपनी पार्टी एफिलिएशन PTI से बरकरार नहीं रख पाएंगे। हमने 2018 के अंदर PMLN के सेनेटर्स के साथ जब शेर का निशान उनसे ले लिया गया था, उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पूरी तारीख हमारे सामने। एक दफ़ा गलत रवायत आप पैदा करें, वो 100 गुना बढ़ के दूसरी दफ़ा इस्तेमाल होती है। आई थिंक कि ये एक बैड एग्जाम्पल जो है ये आपको भी हर्ट करेगी। मलिक साहब, ऐसे ही है कि हमारे मुल्क में जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ऑब्वियसली अपना फैसला करने में भी आज़ाद होता है, उस पर ऑब्वियसली फ्लो क्रॉसिंग का रूल भी नहीं लगता। लेकिन मेरे समझने में ये जो इलेक्शन है ये कन्वेंशनल इलेक्शन नहीं है। हम गलती करते हैं जब हम इस इलेक्शन को उस जाविये से देखते हैं जैसे 18 का या 13 का या 8 का इलेक्शन देखा गया। इस इलेक्शन में वोटर का मूड भी बहुत फ़र्क है, इस इलेक्शन में कैंडिडेट्स का मूड भी बहुत फ़र्क है, और इस इलेक्शन में मेरे समझने में या जितने कैंडिडेट्स को मैंने देखा है वो अपनी ज़ात से बालातर होकर एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है जिसको खान साहब ने टिकट दी है, एक तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा टिकट का प्रोसेस बहुत हमारा पहले से बेहतर था और हमारी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बेहतर थी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है सफ़ा इमरान खान के साथ खड़ा होगा। आपका शहर में मुकाबला किससे है? यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद भी लड़ रहे हैं, वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं, या नून लीग और IPP उन्होंने इत्तेहाद भी किया हुआ है वो आपको चैलेंज दे सकते हैं? जो शहर में जिस हल्के में मैं लड़ रहा हूँ वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जावेद अंसारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से राना महमूद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे समझने में मेरा अगर मुकाबला है तो वो उन ताकतों से है जो जमहूरी नहीं है। बाकी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ मेरे हल्के में बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुल के इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो आई थिंक रिजल्ट जो है 80-20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा। बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप भी कैंपेन करें और महर भी कैंपेन करें, फिर देखेंगे कि एंड रिजल्ट क्या आता है 8 फरवरी। हमें मलिक साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। कैंपेन जिस तरीके से करनी चाहिए थी या हमारा दिल था करने का वो तो शायद हम नहीं कर पाए, और मैं हल्के की आवाम से भी ये कहता हूँ कि हो सकता है कि हर जगह मैं ना पहुँच सकूँ, हर जगह पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन है इन हालात में, बट इमरान खान का पैगाम घर घर पहुँच चुका है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मैं हल्के की आवाम से अपील करता हूँ कि जूते के निशान पर मोहर लगाएं और इमरान खान उसके विजन को कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा नवाज शरीफ को देंगे, इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। जितनी पार्टियां बेकार हैं बाकी इमरान खान को देंगे हम। वोट ये तो अभी सोचा ही नहीं है, यानी वक्त आने पे फैसला करेंगे। अभी मैं अपना वोट कीमती जो है ना शेर को दूंगा। वोट तो इमरान खान का है। वोट हम मुस्लिम लीग को देंगे। कोई ख्याल ही नहीं है वोट का। वोट क्या दें, अपनी पड़ी हुई है, रोटी की पड़ी हुई है, वोट क्या दें, किसी को नहीं देंगे, घर बैठे रहेंगे। वोट जी इमरान खान को। मैं अपना वोट नून लीग को दूंगा। मैंने किसी को भी वोट नहीं देना। वोट इंशाल्लाह ताला PTI को दें। फिलहाल दिल तो नहीं कहता किसी को देने। नवाज शरीफ को। इमरान खान। सर मैंने अपना वोट जनरल पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देना। मैं जमात इस्लामी को वोट दूंगा। इमरान खान को भाई। मुस्लिम लीग को। वोट इंशाल्लाह PTI का। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे और उम्मीद करेंगे कि इंतखाबात शफाफ हों। मैं तरीके इंसाफ नूं दांगा। शेर को। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। वोट भाईजान शेर को दे रहे हैं। बल्ला जिंदाबाद। वोट तो जो ना हम नवाज शरीफ को देंगे। आवाम ने इमरान खान को मौका दिया लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, तबाही करी है। जी वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब का वोट। वोट हम इस साल नवाज शरीफ को देंगे इंशाल्लाह। वोट हम मियां नवाज शरीफ साहब को देंगे। सिर्फ शेर को, नवाज शरीफ साहब को। वोट इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान की तरमीर और तरक्की के लिए मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब को देंगे। PTI। भाईजान हम मजदूर आदमी है, रेडीदार आदमी, हम नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। बिलावल को देंगे, तीर को देंगे वोट इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम का अख्ताम हम कर रहे हैं हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर। इन बुजुर्गान ने अपनी खिदमत से, अपनी तबलीग से और अपनी तरीक़ाकार से जो लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया, वो रास्ता क्या था, रास्ते का इंतखाब करते हुए शायद हमारे सियासी लोगों को भी इन बुजुर्गान की ज़िंदगी से कुछ सबक सीखना चाहिए। आम तौर पर यहाँ हाजिर होते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार वही था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से हमें समझाया था। दीन की खिदमत का रास्ता है, अवाम की खिदमत का रास्ता है,
فقیری اور درویشی کا راستہ ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کرنے کا راستہ ہے۔ دنیا میں جنت کمانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جائے، ان کی دکھوں میں کمی کی جائے، ان کی تکلیفوں میں کمی کی جائے۔ یہاں دولت کے انبار جمع کرنے ہوتے تو ان کو شاید کوئی روک نہیں سکتا تھا، بہت دولت جمع ہو سکتی تھی۔ بادشاہ شہزادے جن کی خانقاہ پہ حاضری دینے کے لیے انتظار کرتے تھے، کیا ان کو دولت کی کمی ہو سکتی تھی؟ نہیں۔ تو دولت کی چاہ ان کو نہیں تھی، ان کو اللہ کی چاہ تھی، اللہ کے راستے کی خدمت میں، اس کے مخلوق کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی۔ تو ہمارے لیے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑا سبق ان بزرگ ہستیوں سے جو سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو لوگ ووٹ دے کر منتخب کر کے پارلیمان کے اندر بھیجتے ہیں، وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے آپ کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، کیا ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا اصل راستہ ہے۔ اگر جس دن ہمارے لیڈرز نے، ہمارے سیاسی رہنماؤں نے اس راستے کو اپنا لیا، اس فقیری، درویشی اور خدمت کے راستے کو اپنا لیا، خدمت ہے ایک لفظ، خدمت کو جس دن انہوں نے سیکھ لیا کہ ان بزرگان نے کیسے لوگوں کی خدمت کی تھی، تو اس دن پاکستان کی تقدیر سنور جائے گی، پاکستان سیدھے راستے پر چل نکلے گا۔ دولت کے انبار جمع کرنا، اس کام کے لیے پارلیمان میں جانا وہ درست نہیں ہے۔ اصل راستہ وہی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ بھی راضی۔ تو آج کے پروگرام کا یہیں سے اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔